Good evening, everyone. Welcome to Matchala. This is Complex Analysis, lecture number 13. As we have discussed in the last class, that power series is nothing but very close to analytic functions. Let us say we have a power series of the expression uh, summation an z minus z naught to the power n. If this power series converges to somewhere, it should have some ground for its convergence along with its center. Let us say this z naught is a center and it has some ground. If we take any point out of it, this power series will of course converge to some number. Let us say we have selected some point, let us say z bar. So the power series an z bar minus z naught. Since this z bar is now a number, so this whole series will represent a number and it will converge to some number, let us say alpha. If we choose some other number, let us say z tilde, then it will give us another power series an z tilde. I should not call it a power series because now it represents a series of real numbers, but let us say, okay, so for this particular z tilde, this power series will converge to some number beta. Along this pattern, if we collect all these numbers, it suggests something. What is that something? Let us conclude that this particular pattern, what we are observing out here, that represents an analytic function. Collectively, these are the ranges of that analytic function. So it means that there must be some relation between a power series, of course a convergent power series, because divergent power series are good for nothing, and of course they're not good for us. So convergent power series, if converges at some point, of course along with that center z naught, if it converges somewhere, that somewhere should be a function and it should be analytic. Now, as we know that analyticity is a domain-based property, so like whatever domain of convergence will be there for the power series, that must be the domain of analyticity for this function. So if we have radius of convergence, or I must say that domain of convergence as 0, let us say radius of convergence is 0, that actually means that your analytic function for which it is converging, that has to be nowhere analytic. That means actually it should not converge, because if it converges, then it converges to analytic function. And as we have said that the radius of convergence is 0, that means it only converges at just at one point, which is center, which is z equals to z naught. So if we take anything other than z equal to z naught, that series should not converge. That is the meaning of radius of convergence, radius of convergence 0. Okay. If this radius of convergence is 0, what it means on the right hand side, on the other side of the plane, it says that that function, that analytic function for which we were talking about, that has to be nowhere analytic, which is a kind of paradox, because analytic function nowhere analytic, that doesn't make sense. Actually, that analytic function does not exist, so which means that it does not converge at all, we can say, because except that one point, except that point of expansion, it is not converging. That means for any point other than z equal to z naught, it's not converging. So up to this point, I hope it is fine. Suppose if we take z r equal to infinity, you might have heard about a power series of radius of convergence infinity. That means if we have a power series of radius of convergence infinity, that means for any number chosen from the complex plane, that power series, after substituting that value in the place of z, so that power series will eventually converge in the, that power series will eventually converge for any randomly chosen point in the complex plane, which suggests that whatever we have on the right hand side as analytic function, the domain of analyticity for that particular function has to be infinite, has to be whole complex plane. What does it suggest? Can you suggest what does it suggest? It suggests that that analytic function has to be entire. Nahin.
What do you think? That analytic function has to be entire. नहीं? Hello? Yes, sir. Yes. है ना? That analytic function has to be entire function. क्यों? क्योंकि radius of convergence, if it is infinity, that means whatever number we choose from the complex plane, it is converging. The output of like the respective power series converges. इसका मतलब ये है the right hand side function, analytic function, इसका जो domain होगा that will be whole R, whole C, sorry. And if domain of convergence, domain of analyticity is whole C, that means function is analytic, analytic on whole C, and we suggest Entire. name which says that entire function. So that is the meaning of power series and its connection with एनालिटिक फंक्शन. ठीक है. अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई सीरीज है a n z टू द z माइनस z टू द पावर n, ठीक है, a n z माइनस z टू द पावर n. तो अब हम कनेक्शन को धीरे धीरे बाद में देखेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि पावर सीरीज में क्या क्या चीजें होती है. तो देखो, z0 जो है, जो आप z0 समझ रहे हैं, z0 क्या है? पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन. कोई पूछे कि क्या पावर सीरीज सिर्फ इसी तरह की होती है, तो बिल्कुल एक सीक्वेंस रहता है और पावर, इसीलिए तो इसको पावर सीरीज कहते हैं ना. ठीक है. अब देखो, मान लो मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी, ठीक है, इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ. ये जो पीछे देख रहे हो, फिर मैं वापस आऊंगा, फिर वो जो हम लोग बीएससी एमएससी में पढ़ते थे उसको समझाऊंगा. मान लो मैं एक सीरीज लिखूं, z minus z cube upon factorial 3, z to the power factorial 5, z to the power 7 upon factorial 7 and so on. मुझे बताइए, ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी? मतलब क्या लिख रहा हूं, समेशन -1 to the power n z to the power 2n plus 1 upon 2n plus 1 फैक्टोरियल. बताओ, ठीक है ना? अगर मैं आपसे ये छुपा के और पूछूं इस पावर सीरीज के बारे में मुझे बताओ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस पावर सीरीज? सेंटर क्या है? ओरिजिन. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए अभी तो मैंने कोई फॉर्मूला बताया नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अभी के लिए समझ लीजिए, an ये जो है ये an है. सो फॉर्मूला क्या होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का? किसी को पता है? यस सर. बताइए. R इक्वल टू an अपॉन an प्लस 1. R इक्वल्स टू लिमिट an अपॉन an प्लस 1. अच्छा, लिमिट. और कुछ होता है या सिर्फ इतना ही? an की पावर 1 अपॉन n मॉडुलस में आता है सर, ये से वो an अपॉन an प्लस 1 होल मॉडुलस में. n टेंड्स टू इंफिनिटी लेते हैं ना सर? एक और चीज रहती है जो मिसिंग है, और मैं जानता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. ना ये तो ठीक है, ये तो रहता ही है. सर, वो 1 तो by हो गया. r, 1 by r. 1 by r भी नहीं, वो क्योंकि तो n upon n रेस plus 1 उल्टा हो जाएगा वो तो. तो वो हाँ. लिमिट सुप्रीमम रहता है वहां पे. लेकिन शायद आप लोगों को अभी उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा. याद आया लिमिट सुप्रीमम? यस सर. सुप्रीमम पढ़ा था. नहीं भी याद आया तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, मैं उसको करा दूंगा तो आपको याद आ जाएगा. ठीक है. अब देखिए, इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे. जो लोग जानते हैं वो देख सकते हैं कि इन्फिनिटी आएगा. क्या आएगा? इन्फिनिटी. इसका मतलब क्या है कि ये पावर सीरीज जिस एनालिटिक फंक्शन पे कन्वर्ज करती, पहले तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी. z की जगह पे कोई भी नंबर रख दो, कन्वर्ज करेगी. और दूसरी चीज क्या है, जिस फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी वो एक एनालिटिक फंक्शन होगा, और एनालिटिसिटी कहाँ होगी? पूरे डोमेन में, यानी कि इंटायर फंक्शन होगा. नहीं, अब इस बात को समझने के लिए, है ना, सॉरी ये मैंने क्या किया है, इस बात को समझने के लिए एक बात बताइए. अच्छा, एक बात बताइए, ये सीरीज जो है, क्या ये जो लेफ्ट में लिखी हुई है ये पहचानते हैं आप? क्या है ये?
साइन जेड साइन एक्सपेंशन है जेड सर। साइन जेड का एक्सपेंशन है। वेरी गुड, साइन जेड का एक्सप्रेशन है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप पहचान गए कि ये पावर सीरीज कहाँ कन्वर्ज कर रही है, क्या ये एफ पहचान गए? क्या है ये एफ? इन्फिनिटी। साइन जेड इंफिनिटी, फिर भी किसी ने बोल दिया एफ इंफिनिटी है। वाओ, साइन जेड है सर। साइन जेड। इतनी अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए टीचर क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ा के और आगे बढ़ जाते हैं, वो क्वेश्चन इससे आ जाता है। देखो साइन जेड, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारी इनफाइनाइट से, अब इसमें तो आपको पता है तो आपने पिक कर लिया, नहीं पता होता है तो कोई बात नहीं, है ना। तो देखो क्लियरली दिख रहा है साइन जेड एक इंटायर फंक्शन है, क्या वो रिलेशन आपको क्लियरली दिख रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है? दिख रहा है? अरे ये दिख गया आपको? यस सर। मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ में आया? मैं कह रहा हूँ, ये मैंने कहा जो पिछले स्लाइड में, इसी स्लाइड में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज का एनालिटिक फंक्शन से जो कनेक्शन है वो यहाँ पे दिख गया ना। ये पावर सीरीज है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाली, इन्फिनिटी आई। फिर आप पीछे गए तो आपको आपको लगा अरे इसको तो मैं पहचानता हूँ, ये इसका ये किसका एक्सप्रेशन है, साइन जेड का। साइन जेड तो इंटायर फंक्शन है बिल्कुल, है ना, ये कनेक्ट कर रहा है हमारी थ्योरी को, है ना, ये कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको सिखाता हूँ पावर सीरीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से सुनो, रिस्पॉन्स किया करो, हाँ, शांत नहीं बैठते। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे बहुमूल्य चीज होती है कि क्या किसी नंबर को सब्स्टिट्यूट करने पर, जैसे अगर आप z इक्वल टू जेड नॉट पुट कर दें इसमें, तो क्या होगा इस सीरीज का आश्चर्य? जीरो जीरो हो जाएगा समेशन। जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज कन्वर्ज कर गई। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता है, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सीरीज को तो आपने नल बना दिया ना, सीरीज तो खत्म हो गई यहाँ पे, है ना, सीरीज खत्म। अगर ऐसा होता कि सीरीज कभी कम से कम एक पॉइंट पे तो कन्वर्ज करती है, तो क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कभी जीरो आता? है ना, समझ रहे हैं? तो ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि z इक्वल टू जेड नॉट पे सीरीज नल हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो ट्रिवियली मान लिया जाता है कि सीरीज जो है, सो द अबव पावर सीरीज, यानी कि एक पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन तो हमें मिल गया, कन्वर्जेस फॉर z इक्वल टू जेड नॉट, यानी अबाउट पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, ये हर सीरीज के लिए होता है, कोई भी जनरलाइज पावर सीरीज है, हर सीरीज के लिए होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए z नॉट के अलावा भी कोई पॉइंट मिल जाए, बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। व्हाट इफ देयर एग्जिस्ट सम, लेट अस से z1 which is not equal to z naught and belong to C, यानी a complex number which is not equal to z naught, such that summation an z1 minus z naught to the power n converges। मेरी बात समझे? ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, लेट अस से ये z नॉट है। अब एक और पॉइंट आपने यहाँ पे चेक किया, लेट अस से ये z1 है और यहाँ पे कन्वर्जेंट आ गया, इसके क्या मायने हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। और मैं देखता हूं लगातार 4 बैच से बच्चे गलती करते आ रहे हैं, ध्यान से करिएगा। मैं चाहता हूं कि आप में से 1-2 लोग हों जो इस सवाल का सही जवाब दें। अभी नहीं पूछूंगा, 15-20 मिनट डेवलपमेंट के बाद पूछूंगा, है ना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। उस टाइम 97% लोगों ने उसको गलत किया था, मतलब जब वो नेट में पहली बार पूछा गया था, और बल्कि कई लोगों ने क्लेम भी कर दिया था कि ये गलत है। लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर समझ लोगे तो कोई गलती नहीं। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पावर सीरीज Z1 पे कन्वर्ज कर रही है, इसका ये मतलब है ना, इसका ये मतलब है, एक पेन उठाओ, इसको इससे कनेक्ट करो,
और यहां से इसको मिलता हुआ एक गोला बनाओ। क्या बनाओगे? सर्कल। कितने रेडियस का? सेंटर से उस पॉइंट के बीच की दूरी। सर इस सर्कल के क्या मतलब है, क्यों बनाया गया है ये सर्कल? ये सर्कल के अंदर अब जितने भी पॉइंट आएंगे, समझना, जितने भी पॉइंट, वो सारे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, यानी इसको ये कहलाएगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब ये कि सर आप यहां से अब Z2 उठा लो, यहां से Z3 उठा लो, और चाहे यहां से कोई भी नंबर उठा लो, अब कन्वर्ज करने ही वाला है। सीरीज कन्वर्ज करने वाली है। तो आप कहोगे सर मान लो Z0 के आगे बढ़े, किसी नंबर Z1 पे पहुंचे, और यहां पे हमें सीरीज कन्वर्ज करती हुई नहीं मिली, तो आप क्या कह दोगे कि सीरीज कहीं कन्वर्ज नहीं करती? तो मैंने कहा देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में भी ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर उपलब्ध होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि बीच में आपने सब जगह चेक करिए, ठीक है? और अगर नो वेयर कन्वर्जेंस सीरीज होगी तो ये अकेला पॉइंट होगा जहां पे कन्वर्ज मिले, इसके बाहर कभी कोई कन्वर्जेंस नहीं मिलेगा। वही कारण होता है कि सिर्फ ऐसे करके इसको कह दिया जाता है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, डॉट को पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन, है ना? लेकिन अगर डॉट से आगे बढ़े, यहां चेक किया और यहाँ कन्वर्जेंट मिल गया, डाइवर्जेंट मिल गया तो समस्या है। इसका मतलब पहले कहीं आपको सब जगह चेक करना पड़ेगा। कन्वर्जेंट मिल गया तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अब यहां चेक नहीं करना है बीच में, समझ रहे हो? यहां पे चेक नहीं करना है। कोई बताएगा क्यों नहीं चेक करना है? सर वो क्योंकि सर्कल फिर फॉर्म वो करेगा ना, सर्कल के अंदर सभी पॉइंट्स सर्कल के अंदर सभी पॉइंट्स आ जाएंगे जो आपने बनाए हैं। कैसे चेक करेंगे? थियोरेटिकली ये सर्कल पूरा का पूरा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए आप आगे बढ़े, आपने यहाँ Z2 के लिए चेक किया, और मान लीजिए यहाँ पे भी कन्वर्जेंट आ गया, तो अब ना सिर्फ इतने के लिए, बल्कि ये पूरा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बन गया। अब यहाँ के लिए पॉइंट उठा लो, समझ लो, ऐसे 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 ऐसे। सर रुकना कब है? जब डाइवर्जेंट है। एग्जैक्टली जब पहला डाइवर्जिंग पॉइंट आएगा तब रुक जाइए, तब रुक जाइए। क्यों? क्योंकि यहीं से वो लाइन खिंच जाएगी, वो डेंजर लाइन जो होती है ना, यहीं से वो लाइन खिंच जाती है। और ये क्या बना दिया मैंने, ये जो लाइन है, और ये डेंजर लाइन क्या कहलाती है, बता सकते हो? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का नाम। रेडियस ऑफ ये यहां से लेके यहां तक, अब ये रेडियस हो गई, और अब ये हो गया आपका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। इसके बाहर कन्वर्जेंस नहीं है, ये बात श्योर हो गई पहला डाइवर्जिंग पॉइंट मिलने से। जब तक कन्वर्जेंस मिल रहा है, देखते जाइए, है ना? एक पहला डाइवर्जिंग पॉइंट मिलेगा, वहीं रुक जाइए, लाइन खींच दीजिए, समझ लीजिए यही गड़बड़ है, ठीक है? जैसे एक सतह है, ठीक है? आप किसी अनजाने द्वीप पे, अनजाने टापू पे पहुंच जाते हैं, और इसको पार करना है ना? आप हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आपको लीडर बना रखा है, आप आगे जा रहे हैं, ठीक है? पहला कदम रखा, सपोज पहला कदम यहाँ रखा, तो पीछे वाले से क्या कहोगे कि अब इतना एरिया सुरक्षित है, यहाँ कदम रख सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं? फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ पैर रखा और ठीक लगा, इसका मतलब दलदल नहीं है, यहाँ का भी एरिया सुरक्षित है, आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहे हैं? अब आगे बढ़ते चले गए, तो यानी कि पहले डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ये हुआ, यहाँ सुरक्षित हो गया, फिर इतने में, क्योंकि आप तो निकलते हुए जा रहे हैं तो सुरक्षा ही है। अब आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए, तो अब मुझे बताइए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कब मानी जाएगी? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो सबसे बड़ी लाइन लेंथ नहीं हो गई जहां पे कन्वर्जेंस खत्म हो जाता है मिलना, जहां के बाद यस सर, है ना? यस यानी कि आप जो है, कब पता चलेगा आपके दोस्तों को कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल चुकी है, यानी कि ये सबसे बड़ी लेंथ मिल चुकी है जहां तक
रास्ता साफ है, आगे सब दलदल है, कब पता चलेगा? जब पहला दोस्त दलदल में फंस जाएगा। जब यस पहला सर, दोस्त पहला वाला दलदल में बच जाएगा तो दूसरे जाएंगे ही नहीं। जब पहला वाला दोस्त अंदर समा जाएगा और लोगों को लगेगा कि ये गायब हो गया, तो कहेंगे बस यहीं से वापस हो लो। देख रहे हो दोस्त कितने क्रूर होते हैं। काम निकाल लिया आपको लीडर, आपको लगा कि मैं लीडर बन गया, वाह क्या बात है, लेकिन एक्चुअली उनको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना था, आपको आगे बढ़ा दिया, है ना। आप खुशी खुशी लीडर बन के आगे बढ़ गए, लेकिन आज एक गलती आपको भारी पड़ गई और आप अंदर चले गए, और यहीं से उन्होंने बाउंड्री खींच ली और आगे वाले लोगों को क्या बताया, इसके आगे मत जाना, इसके आगे सब डाइवर्जेंस है, कोई पॉइंट चुनोगे उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे जेड की जगह पे, तो एक डाइवर्जिंग सीरीज बनेगी, है ना। इसका मतलब ये है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात तो समझ में आएगी। इसका मतलब ये है, ये प्रोसेस तो बड़ा मुश्किल होता है। मतलब मान लो Z0 है, अब आपने Z1 ये पिक किया, यानी कि आपको क्या प्रे करना चाहिए कि यहाँ पे कन्वर्जेंस मिले। क्यों? तो आप इतनी श्योरिटी तो दे पाओगे। अगर डाइवर्जेंस मिल गया तो नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर Z0 से बढ़े और Z1 पे डाइवर्जेंस मिल गया तो नुकसान ये है कि आपको यहाँ पूरे पे चेक करना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये था कि आप उछल के कूदे और जहां कूदे तो फिर वो आए नहीं, समझ रहे हो, नीचे ही चले गए। तो इसका मतलब क्या है, क्या आपके दोस्त यहाँ भी पैर रखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, उनको लगेगा पता नहीं यहाँ कूदा होता तो यहीं चला जाता, समझ रहे हो। तो अब मुझे आप बताओ कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर गिवन है, सपोज ये Z0 है, ध्यान से जवाब देना, है ना, सोच के देना, तो मुझे लगेगा कि मेरा काम सफल हो गया। मान लीजिए R जो है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और ये जो है वो सर्कल है, क्या क्या कहते हैं इसको कहते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या फिर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। अब आप पूछें कि सर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि सर्कल के अंदर जो है पूरा जैसे ही पहला कन्वर्जेंस मिले पूरे सर्कल में कन्वर्जेंस हो जाता है। तो मुझे तो देखो थ्योरेटिकली मैं मतलब इसका रीजन नहीं जानता, हो सकता है प्रूफ वगैरह किया गया हो, ऑफ कोर्स किया गया होगा, लेकिन दलदल वाली चीज से मुझे समझ में आया। मान लो पानी भरा हुआ है, नदी है, आपने पैर रखा है और यहाँ तक ओके है, मतलब पीछा वाला सब ओके है कि नहीं, पीछे वाला ओके। अब आगे है, यहाँ डूब गए हो, इसका मतलब पीछे तक ओके नहीं है, चेक करो, है कि नहीं? क्या पता यहाँ भी डूब जाओ, लेकिन अगर यहाँ तक ओके है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बना लो, है कि नहीं। मुझे थोड़ा समझाने में ये चीज सही लगी तो आप इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है ना। आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका ध्यान से जवाब देना। मान लो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस गिवन है R, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, Z माइनस Z0 लेस देन R। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, ऐसे ही लिखा होता है। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे इक्वलिटी क्यों नहीं है? कई बार आपने देखा होगा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ये लेस देन R क्यों होता है? क्या बाउंड्री पे किसी को कोई दिक्कत है? वो कहता है बाउंड्री पे खुद चेक कर लो यार, बाउंड्री पे गारंटी नहीं दे सकते, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो उसके अंदर है, इसके अंदर श्योर है, पक्का है, लेकिन बाउंड्री पे नहीं दे सकते। मतलब सपोज Z0 अगर 0 है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, तो यूनिट सर्कल के अंदर मॉड Z लेस देन 1 के अंदर तो कन्वर्जेंस की गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी बाउंड्री पे गारंटी नहीं है। क्यों नहीं दे रहा है वो बाउंड्री पे गारंटी, जरा समझाओ मुझे, मतलब कोशिश करो। सर डोमेन ओपन एंड कनेक्टेड आपने ऐसा बताया था। ओके, फिर अगर सर डोमेन ओपन और कनेक्टेड होगा तो हो सकता है कि इंटीरियर पॉइंट्स का कुछ ऐसे सिस्टम हो। ऐसे समझो जैसे बिकॉज वो डेंजर पॉइंट जब मिलता है तभी तो अपन वो सर्कल खींचते हैं बड़ा वाला। एग्जैक्टली जब आपको पहली बार खतरा महसूस हुआ तभी से तो आपने घेरा बना दिया, यहाँ से चले यहाँ पहुंचे ओके है, यहाँ पहुंचे ओके है, यहाँ पे आपको महसूस हुआ तो आपने यहाँ से घेरा बना दिया कि बस, है कि नहीं।
यानी कि ये जो है ये क्या है, ये डेंजर पॉइंट है। एंड पॉइंट हमेशा डेंजर पॉइंट होते हैं, हमेशा उसको चेक कर लीजिए। ठीक, तो याद रखेंगे क्यों यहाँ पे इक्वालिटी इज अवॉइडेड हियर, बिकॉज end points are danger points. danger points है तो that is we must put these, मतलब गारंटी मत देना किसी को कि इस पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये सेटअप है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो हमेशा कहना कि ये जो अंदर का एरिया है ना, इसमें से आप कोई भी पॉइंट उठाओ, हमारी पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी। लेकिन कभी ये मत कहना कि 1 पे या आयोटा पे या माइनस आयोटा पे माइनस, जिनके मॉड इक्वल टू 1 है वहां पे गारंटी मत देना। क्यों? क्योंकि डेंजर पॉइंट है ना, इनको चेक कर लो। समझ रहे हो? ये कौन से पॉइंट है, z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा वाले, है कि नहीं? इस पे चेक कर लो, मॉड z इक्वल टू 1, इन पे पुट करके चेक कर लो कि 1 पे क्या आ रहा है, आयोटा पे क्या आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कन्वर्जेंट भी हो जाए, मे बी, है ना, डेंजर पॉइंट है, हो भी सकता है। हो सकता है कि डाइवर्जेंट भी आ जाए, लेकिन इसके अंदर श्योरिटी। ठीक, तो यहाँ पे श्योरिटी है, लेकिन पॉइंट पे, मतलब एंड पॉइंट पे चेक किया जाता है। वी मस्ट पुट दीज एंड पॉइंट्स एंड चेक द कन्वर्जेंस। हमेशा याद रखिए, अभी एग्जांपल में कराऊंगा तो समझ में आएगा। एग्जांपल जो है, कभी आपके दिमाग में आया नहीं क्वेश्चन करते हुए कि यार ये लेस क्यों है, जब इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं, तो एंड पॉइंट पे क्यों जो है हम वो नहीं दे पाते। अब देखो ये चीज समझ में आई। अब जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर मैं आपसे कहूं, अब इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मेन फंक्शन से क्या रिलेशन है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसको कहते हैं। समझ में आया? मान लो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाँ, क्वेश्चन है, लेट summation an z to the power n be convergent at z equals to 5। मतलब an कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ 5 भी रख दो तो कन्वर्ज कर जाए। देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी, ध्यान से देखना, इसका आंसर कर दोगे तो मन खुश हो जाएगा भाई। एग्जैक्टली हाँ, किसी ने बोला है भाई कि लेस देन 5। है, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन दे देने दीजिए। और पुराने बच्चे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। r इक्वल टू 5, r ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर इक्वल 5, r सॉरी r लेस इक्वल 5, r ग्रेटर देन 5। आपके पास 60 सेकंड का समय है, आप समय ले लीजिए, ठीक है, और फिर मुझे आंसर करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, CSI नेट का। r equals to 5। r इक्वल टू 5, ओके। और कोई फटाफट बताओ, जल्दी, डिस्कशन भी करना है ना। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है r इक्वल टू 5 होना चाहिए? अच्छा, किसी को ये नहीं लग रहा कि r ग्रेटर देन 5 होना चाहिए? दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। किसी को लग रहा है अदर देन गुड्डू? नहीं सर, ये तो नहीं लग रहा। अच्छा एक बात बताइए, हाँ ना सर, r ग्रेटर देन 5 होना चाहिए ना सर। वो आपने जो इक्वेशन लिखी है ऊपर, उसमें r का वो माउथ, तो ग्रेटर का माउथ r की तरफ है। मैंने कहा ये r ग्रेटर देन 5, ये वाला आंसर सही होना चाहिए। अब मुझे ये तो नहीं पता आप सर वो ऊपर जो आपने वो सर्कल किया है ना, रेड कलर में जो इक्वेशन लिखा है z माइनस z नॉट लेस हाँ देन, हाँ हाँ हाँ,
तो वो 5 लेस देन आर अगर अपन उसको अदरवाइज रीड करें तो वो किस नहीं हिसाब नहीं से? नहीं नहीं नहीं, ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है, जी। ये आर फिक्स है। यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है। ओके क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है मैं समझाता हूँ ओके आपको, सब लोग समझिए। इसका ओरिजिन क्या है ये बताइए, पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है सीरीज का? 0 है सर। 0 आ रहा है। जीरो। यानी कि कोई एक ऐसा दोस्त है जिसने r इक्वल टू 5 यानी कि ये कोई नंबर 5 प्लस 0 आयोटा ये है मान लीजिए, ये रख के देखा और उसको कन्वर्जेंस मिला। तो क्या अब इसको इसी को डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस मान के रह जाना चाहिए, या फिर इसको कहना चाहिए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अभी और आगे भी हो सकती, मतलब मिनिमम तो इतना हो ही गया, ये फिक्स है। समझ पा रहे? आपने इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लिया और आपने कहा बस इतना ही। कैन सर आपको कैन बी आगे बोल भी रहा है हो सर, डी हो सकता है है। सर, आर ग्रेटर देन 5 कैन बी, एग्जैक्टली कैन सर डी ही होगा। और सी होगा आर ग्रेटर देन 5। देखिए, यहाँ पे कैन भी लिखा हो या ना लिखा हो, मयूरी समझिए, यहाँ पे कैन भी लिखा हो या ना लिखा हो, इस अगर ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है मैं आपसे पूछता हूँ, अगर यहाँ पे पहला कन्वर्जेंस मिल गया तो क्या उसी को कह देते हैं? जहां पहला डाइवर्जेंस मिलता है वहां रुकते हैं, कन्वर्जेंस पे वहां रुकते हैं। यस हाँ, सर। इसका मतलब क्योंकि है- यस Yes, पाँच sir. के Yes, sir. आगे भी तो बहुत संभावना है सर, अभी जांचा कहाँ है, बिल्कुल, जांचे कहाँ है हम लोग। अभी चेक कहाँ किया गया है? अभी ये तो बात ऐसी हो गई कि सेक्शन ए में किसी के 15-20 नंबर बन रहे हैं, है ना? तो अब 20 नंबर को सब कुछ मान लेंगे क्या? अभी 20 ही तो चेक नहीं किए हैं नहीं भाई, सर। है ना? इसको भी चेक करना है। इसका मतलब आंसर आना चाहिए लास्ट। अभी दलदल आने का है, आगे हाँ और आ सकता एग्जैक्टली, है। उसने ये नहीं कहा कि आर सर z इक्वल टू सर ये 5 दिमाग पे झुलाने वाला डाइवर्जेंस क्वेश्चन लगा। था सर। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस लिख देता तो आर लेस देन 5 होता, यस सर। इक्वल टू भी नहीं, लेस yes, देन sir. 5 होता, हाँ 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 है कि यस नहीं? सर। यस। इसको समझिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, समेशन an z to the power n let be divergent at z equal to 2, then r यानी कि possible r can be r less than 2, r less equal to, r greater than 2, r equal to 2। अब आप बताइए सोच के। सर ए आर लेस देन 2। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने 0 से आगे बढ़ाया, ये 0 है और ये 2 है। अब यहाँ पे उसने कह दिया कि डाइवर्जेंस है, यहाँ पे वो जैसे हाथ रखा वो अंदर घुस गया, तो क्या गारंटी मिल गई कि यहाँ सब क्लीन है? नहीं, आप चेक करो, क्या पता आर उससे पहले हो। इतना श्योर हो गया कि ना आर 2 है और ना 2 से बड़ी, अब आर को 2 से छोटा ही होना होगा। छोटा होना पड़ेगा। समझ रहे? आप समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। और ये बिना कॉन्सेप्ट समझ में Yes, नहीं sir. आता। ये तो सर क्वेश्चन। ऑप्शन बी, हाँ बेटा, क्या सर पूछा? ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकते इसके पहले वाले इक्वल क्वेश्चन में? इक्वल क्या दिया इक्वल हुआ हो सकता है क्या? वही तो चिल्ला रहा हूँ मैं, क्या इक्वल हो सकती है रेडियस? डाइवर्जेंट है सर इक्वल इसके में। पहले वाले में इससे कौन से पहले वाले में? दो देखो confidence में। यहाँ पे क्या है, r कैन बी 5, आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर, इसीलिए मैंने कहा था मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है आपको। एक ही तो चूज करना है, मल्टीपल थोड़ी है। r देखो यहाँ पे 5 हुआ, 5 पे कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट तो नहीं है। इसका मतलब 5 के आगे, अब जस्ट अगले वाले पॉइंट पे चेक तो नहीं किया है हमने, तो हमें तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 5 से बड़ा ही होगा। पर सर 5 पे कन्वर्जेंट है, ये कैसे पता? है? आप, मुझे लग रहा है कि आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये साफ साफ लिख के दिया है मैंने, लेट कन्वर्जेंट एट z इक्वल टू 5। ये क्या है? ये तो बड़ी बड़ी अजीब बात है भाई, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूँ रिगार्डिंग पावर सीरीज। इसको ध्यान रखिए, ये स्टार लगा लो, है ना? आपको बहुत कुछ सिखाएगा। लेट अस से ये z0 है, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू जिसके अंदर हर पॉइंट पे, कोई पॉइंट चूज कर लो, सीरीज कन्वर्जेंट टाइप। ठीक, चलो पहला पॉइंट लिखते हैं। यानी कि एक बात बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर किसी सेंटर को छोड़ के अगर किसी एक पॉइंट पे भी कन्वर्जेंस मिल जाता तो एक पूरे सर्कल में कन्वर्जेंस मिल जाता यस सर। है कि नहीं? यस सर। हाँ तो आओ लिखें। सो पावर सीरीज
यहाँ पे पावर सीरीज लिख भी देता हूँ, समेशन an z minus z naught to the power n. Power series is convergent for z equal to z naught. ये तो trivial है. Trivially, every power series converges about its center. But if it converges for some z not equal to z naught, then है ना, let's say z1, then it converges for, देखो इसका मतलब क्या है, एक z1 के लिए कन्वर्ज, तो होल डोमेन, कौन सा डोमेन, सेंटर से उस z1 तक का लेस देन r where sorry z माइनस, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या लिख रहा हूं, ये देखो ये लिख रहा हूं कि एक पॉइंट अगर z1 मिल गया Yes. कन्वर्जेंस के लिए नॉट इक्वल टू z नॉट होना चाहिए, तो z माइनस z नॉट, z माइनस z नॉट, ये सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, z माइनस z नॉट लेस देन r, और r क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन z नॉट एंड z1. तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि नॉट ओनली कन्वर्जेस एट दैट पॉइंट बट इन द होल सर्कल. सर यहाँ पे जो मॉड z माइनस z1 होना चाहिए कि z माइनस, नहीं देखिए, पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन के अबाउट होगा ना, z1 के अबाउट थोड़ी होगा, z1 से तो निकाल रहे हो आप. ओके मतलब of z नॉट और expansion- z1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है सबके लिए वो Exactly. कन्वर्ज हो जाए. हाँ, तो उसके लिए सेंटर क्या चूज करोगे, सेंटर तो पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन ही होगा ना. पीछे देखिए हम लोग चले आ रहे हैं, देखिए पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन से ये ठीक, ये पॉइंट हो गया एक. अब कुछ और पॉइंट्स, तो मतलब मैं ये लिख दूं कि इफ इट कन्वर्जेस, सो इफ इट सर इसको थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए सर. at some point, वीडियो देख लीजिए, गुड्डू जी 3 बार कर चुका हूँ. At some point other than center, then ये लिख दिया, देखो फिर से चौथी बार लिख भी दिया, then it converges in an open disk around z naught. समझ रहे हो, ये है वो ओपन डिस्क, मतलब ठीक सिर्फ है। एक पॉइंट पे नहीं, फिर एक डिस्क में हो जाता है कन्वर्जेंस. समझ रहे हो ये चीज. चलो आगे बढ़ते हैं. अब मान लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट को तो मुझे बस क्लियर करवाना था, आपको लिखवाना भी था. द लार्जेस्ट पॉसिबल आर सच दैट, देखो वही चीज बोल रहा है वो भी, समेशन an z minus z naught to the power n converges for every chosen z. कहां से चूज करना है, फ्रॉम द सेट z minus z naught less than r. याद करो ये क्या था, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, वही तो कह रहा है, बस लिखवाए दे रहा हूं. और ये लार्जेस्ट पॉसिबल इज कॉल्ड एज, क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है कि नहीं. तो इसका सिग्निफिकेंस मालूम होना चाहिए, अदरवाइज थोड़े दिनों में अगर थोड़े क्वेश्चन टिपिकल हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाता है. अब यहाँ पे जो पॉइंट लिख रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है. फॉर एवरी जेड, इसलिए कहते हैं मैथ्स पढ़नी आनी चाहिए, इंग्लिश है ये सब जो लिख रहा हूँ, इसके पीछे का जो इसेंस है वो मैथमेटिक्स. यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, लेस इक्वल अल्फा लेस देन आर, पावर सीरीज, सॉरी इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ. मैथ्स पढ़ के बताना मुझे कि मैं क्या लिख रहा हूँ. पावर सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्म. अब मैं कन्वर्जेंस के टाइप बता रहा हूं,
ध्यान से सुनना, फॉर एवरी z belonging to z minus z naught less than r पावर सीरीज, देखते हैं कितने लोग पकड़ पाते हैं मैं क्या लिख रहा हूं, कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एब्सोल्युटली। नेचर ऑफ कन्वर्जेंस बता रहा हूँ डोमेन के हिसाब से। आप कहोगे सर डोमेन तो एक ही लिख रहे हो, इसका मतलब आपको इंग्लिश पढ़ना तो आ गया, मैथ्स पढ़ना नहीं आया। इसको ध्यान से देखो, एक ही नहीं है, है ना? याद आया? बस एक हिंट करूंगा, ओपन 01 और A01 A पॉजिटिव, जिनको इसमें डिफरेंस पता है, इस दो तरह के, उनको ये दोनों ऊपर के डोमेन में फर्क पता है। ठीक है, तो इस डोमेन में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, जहां भी करे, ऑफ कोर्स किसी एनालिटिक फंक्शन पे करेगा, और इस डोमेन में एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है। और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में फर्क पता है। थर्ड है, फॉर एवरी z in z minus z naught greater than r power series diverges। वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया है। डी, अब देखना पड़ेगा, z belonging to z minus z naught equal to r, बताइए क्या लिखूं यहाँ पे? नॉट श्योर, बाउंड्री, बाउंड्री नॉट श्योर है, पकड़ा सही है चेक आपने? करना पड़ेगा अपने। हाँ, पावर सीरीज में और मे नॉट कन्वर्ज। ठीक है, और साइड में मेरी तरफ से ये हिंट है आपके, हिंट क्या, मेरी तरफ से एडवाइस है, वी मस्ट चेक। ठीक, अब देखो समझाता हूं इसको, इसका मतलब क्या है। अच्छा, ये इंटरवल समझ में आया था, ऊपर वाला, है ना? इसका मतलब पता है क्या है, R अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, यहाँ पे R का क्या, R पहले ही बता दिया गया है, R रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, ये पॉइंट है Z0 सेंटर। अगर R रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो ये R हो गया, और यहां से हमने सर्कल बना लिया। इसको क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस या फिर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट चूज करो, उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो नई सीरीज है ना, सीरीज मतलब रियल नंबर की सीरीज बनेगी भाई, अब तो वो जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट। तो आप कहोगे सर ये लेस देन आर, इस डोमेन में और इस डोमेन में क्या फर्क है? वो कहता है इसके अंदर अगर रैंडमली आपने कोई भी पॉइंट चूज किया, लेस देन आर की बात कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट यहाँ पे आपने चूज किया, तो सीरीज हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। समझ रहे हो? एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब पता है? सीरीज में अगर किसी सीरीज, सपोज समेशन an कोई सीरीज है और मॉड an भी कन्वर्ज करे, तो इसी सीरीज के कन्वर्जेंस को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, है ना? और सीरीज कन्वर्ज करे और मॉड डाइवर्ज कर जाए तो इसको कहते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंस। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का आपको मतलब पता है, रैंडमली कोई भी पॉइंट चूज करो, एप्सिलॉन डेल्टा वाला, है ना? नहीं पता है तो रफ आइडिया ये समझ लीजिए कि जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है उससे मिलता जुलता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, है ना? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ना? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ग्रेटर देन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये लार्जेस्ट वैल्यू है, तो इसके आगे अगर आपने यहाँ का कोई पॉइंट चूज कर लिया है, लेटर से z बार, तो ऑफ कोर्स डाइवर्जेंट होने वाला है। तो ये डोमेन क्या है? डाइवर्जेंस का डोमेन। ठीक, वही थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि बाउंड्री पे आपको चेक कर लेना है। ये क्या है? यूनिफॉर्म। मतलब अगर मैं, कोई पूछे कि सर मैं यहाँ से कोई डोमेन का कोई पॉइंट चूज करूँ तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आपको मिलेगा। तो सर मेरे को चाहिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, उसका मतलब क्या है? देखो, वो ये कहता है कि ये जो डोमेन है ना, ये ओपन बाउंड्री है, इसको कहीं से ना क्लोज कर दो। क्या करो? क्लोज कर दो। तो बिल्कुल इसके करीब से एक बिल्कुल करीब से एक लाइन खींच दो, मतलब एक बाउंड्री बना दो। ये तो ओपन सेट है ना, इसको क्लोज बना दो। ये इस बाउंड्री के अंदर और इस बाउंड्री के ऊपर सब कुछ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। आप शायद अब इस इंटरवल के फर्क से आपको समझ, ये क्या है? ओपन 01 क्या है? यू कैन गो आर्बिट्री क्लोज टू 0, कोई भी वैल्यू आप यहां से चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहां से एक चालाकी करी
ठीक है, और मैंने 0 के पहले एक नंबर चूज कर लिया, जस्ट पहले, हाँ एकदम जस्ट पहले, कौन सा, ए, ऑफ कोर्स ए कोई पॉजिटिव नंबर होगा, है ना, और यहाँ पे मैंने लगा दी बाउंड्री, तो भैया अब ये बन गया कॉम्पैक्ट सेट, और इससे बड़े बड़े रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो अब समझ में आया, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, एक नॉन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट बना लिया, बस कुछ पॉइंट ही तो छूटे, बाकी सारे तो हो गए। फर्क समझ में आया? तो एक डोमेन के अंदर अगर आप एक बाउंड्री अंदर फिक्स कर ले, लेट ये बाउंड्री है, इसीलिए तो लेस इक्वल अल्फा लिखा, नहीं तो इक्वलिटी का तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन अगर आपने विद इन द सर्कल एक बाउंड्री खींच रखी है, तो समझ लीजिए कि आप यहां तक भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी कन्वर्जेंस में कोई तकलीफ नहीं होगी, इक्वलिटी भी ला सकते हैं, और वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगा, पूछ सकता है। मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा, है ना? क्लियर हुआ भाई? यस सर, जमा। यस सर, यस। ओके गुड। एक क्वेश्चन है, करो। लेट समेशन an, किसी के पन्ने पर लिख रहे हैं, n z to the power n बी कन्वर्जेंट। गुड्डू जी समझ में आ गया अभी? एट 3 + 4i। हेलो गुड्डू जी, सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन रहे हैं सर। तो समझ में आया कि नहीं आया? हमारा आवाज नहीं, मेरे ईयरफोन का माइक खराब हो गया सर। आपका आवाज आ रहा है बोल मुझे। रहे हैं तो नहीं सुनाई दे रहा है, अभी निकाल दिए हैं सर। अच्छा, तो वही मैं कह रहा हूँ कि धैर्य रखिए, कोई दिक्कत होती नहीं है, जल्दबाजी नहीं करिए, है ना, आ जाता है धीरे धीरे। मैं एक बात को, वैसे भी मेरा नेचर है 5 बार तो बोलता ही हूँ, 4-5। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिए और सॉल्व करिए। तो ये आपका सी आंसर है, पहले भी कर रखा है, बस यहाँ पे पॉइंट बदल दिया मैंने। लेकिन याद रखना, क्या याद रखोगे? नोटिस दैट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज 0, पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन अगर 0 नहीं होता तो इसका इससे डिस्टेंस निकालना पड़ता, डिफरेंस लेते हैं। हाँ। व्हेनेवर, एक्चुअली मुझे वही करना था, पर ठीक है। व्हेनेवर अ पावर सीरीज कन्वर्जेस at some point other than center, इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं? अगर मैं सेंटर से के अलावा किसी पॉइंट z1 पे भी कन्वर्जेंस चाहता हूं, तो मैं एक्चुअली कुछ डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस चाहता हूं। ये है डी, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो अगर कोई पावर सीरीज है, तो जब भी ऐसी पावर सीरीज कन्वर्ज करती है, यानी कि उसका कुछ r 0 ना हो यार, कुछ तो कोई फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। मैंने कहा ना ये इंग्लिश है, लेकिन इसको समझ लेना वो मैथमेटिक्स है। सो व्हेनेवर अ पावर सीरीज कन्वर्जेस एट सम पॉइंट अदर देन सेंटर, इट कन्वर्जेस। तभी तो कई बार होता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा कई बार लोकल मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम या बंगाली मीडियम लोकल बच्चों से हार जाता है। क्यों? क्योंकि देखो सब्जेक्ट की ना भाषा नहीं होती, मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि मैथ्स को आपने इंग्लिश में, इंग्लिश बोलना आ गया है या इंग्लिश में आपको पढ़ाया गया तो आप ज्यादा एडवांस, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अगर आप इससे मतलब नहीं पता, तो चाहे आपने इसको इंग्लिश में पढ़ा हो या फ्रेंच में, आप 0 है कि नहीं? तो इट कन्वर्जेस टू एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। बताओ, यही तो चिल्ला रहा था इतने दिन से, है ना? और इसका डोमेन ऑफ एनालिटिसिटी क्या होता है? एंड इट्स डोमेन ऑफ एनालिटिसिटी क्या आ जाएगा? इज नथिंग बट डोमेन ऑफ, क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? कन्वर्जेंस। वेरी गुड, है ना? इतने बार बोल दूंगा कि दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए। दैट इज मॉड z माइनस z नॉट लेस देन r। कई बार पेपर में इक्वल दे देगा, तो एक इक्वल पे जरा चेक कर लेना गारंटी देने से पहले, ठीक है? चलो इतनी सी बात है। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन लिखवाता हूँ। मान लो जिसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। मैंने कहा ना, कोई पावर सीरीज है an z माइनस z नॉट टू द पावर n। z नॉट रखोगे तो ये सीरीज 0 हो जाएगी, कोई और नंबर रखोगे तो एक रियल नंबर की या कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज बन जाएगी, और उसका कन्वर्जेंस आप रिया ऐसे चेक किया जाता है, वैसे चेक कर सकते हैं। ये जिसको कन्वर्ज करती है वो एक एनालिटिक फंक्शन होता है। इसका जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो इसका डोमेन ऑफ एनालिटिसिटी होता है, ठीक? ये अगर D है तो ये
यहाँ पे डी है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर इसका ये दे दिया जाए और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ना दिया जाए, ये क्वेश्चन आ चुका है ना। सो व्हाट इफ r इज नॉट गिवन, यानी रिपीट अगेन। मैंने कहा कि यहाँ पे r ना दिया जाए, an ना दिया जाए, मतलब ये जो an है, r कैसे निकालते हो, r निकालते हो, अभी लिखवा दूंगा, लिमिट सुप्रीमम ऑफ an अपॉन an प्लस 1, यही तो करते हो, और एक an टू द पावर 1/n, दो फॉर्मूले होते हैं। लेकिन मान लो an दिया ही ना जाए तो क्या करोगे, अभी क्वेश्चन करा दूंगा। ऐसे केस में कैसे पकड़ोगे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, लेकिन एक चीज दे दी जाए, क्या, ये फंक्शन जिसपे ये पावर सीरीज कन्वर्ज करने वाली है। सो व्हाट इफ an इज नॉट गिवन बट द फंक्शन f of z is given. So can you tell me the power series? कल मैंने sorry radius of convergence. So can we predict radius of convergence? कर तो लेना चाहिए, क्यों, सेंटर तो गिवन है। मैंने आपको बताया था नियरेस्ट सिंगुलरिटी से सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वही होगी, क्यों, इसकी सिंगुलरिटी देख लो क्योंकि नेचर तो सेम है। मान लो इसकी इस पॉइंट पे सब यहां तक सब रेगुलर है, इसका मतलब यहाँ ये हो गया डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, इसका इक्विवेलेंस है ना, समझ रहे हो, इसका डोमेन, इसका डोमेन, इसकी सिंगुलरिटी, इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फेल हो गया, है ना। प्रिडिक्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आओ देखें क्वेश्चन के सहारे देखते हैं, या क्वेश्चन लिखवा देता हूं फिर आपसे। समेशन an z माइनस 2 टू द पावर n, मान लिया ये 1/sin z को कन्वर्ज कर रहा है, देन व्हाट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ROC, ठीक, ये हो गया 1 0 पाई माइनस 2। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अच्छे समझो, सेंटर दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है। अब ऐसे ROC पूछेगा, an तो गिवन नहीं है, तो बहुत लोग चकरा जाते हैं। अरे तो परेशान मत हो भाई, कॉन्सेप्ट तो पता है ना, जो इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इसका डोमेन ऑफ एनालिटिसिटी है। तो देखो ये कितने डोमेन में एनालिटिक है, जहां पे इसकी सबसे करीब की सिंगुलरिटी होगी बस वहीं से गोला खींच दो। तो पहले तो बताओ 1/sin z की कौन कौन सी सिंगुलरिटी है, n पाई, यानी कि पाई, 1/sin z, ये है n पाई, है ना। n पाई का मतलब हो गया, सॉरी n बिलोंग टू z, ठीक है, इसका मतलब हो गया -2 -1। गुड्डू जी ने सब प्रीवियस ईयर लगा चुके हैं, 1 2 एंड सो ऑन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, ये हो गया। अब इसमें से सेंटर के सबसे करीब वाली सिंगुलरिटी देखो, पता कि सेंटर में से घटा देंगे सर, एथी को घटा देंगे सिंगुलरिटी को। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है कि आओ 2 मिनट में सीखें कि सिंगुलरिटी है, ट्रिक थोड़ी ना है, आप भी समझ रहे होगे। अगर कोई फंक्शन है ना, ये उसकी सिंगुलरिटी है यहाँ 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 यहाँ, ठीक, तो जो सबसे करीब की सिंगुलरिटी होगी बस उसी के अंदर तो आपको कन्वर्जेंस मिलेगा, मतलब जो एनालिटिसिटी है वो मिलेगी, है कि नहीं। और जो यहाँ डोमेन ऑफ एनालिटिसिटी है वही यहाँ पे डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है, तो रिवर्स होके वही बात होगी। अब z नॉट इक्वल टू 2 में सबसे करीब कौन सी सिंगुलरिटी, अच्छा ये तो मैंने गलत लिख दिया, ये पाई दिया भाई। बताइए सबसे डिफरेंस कैलकुलेट करो, देखो सबसे पास में कौन है। बहुत लोगों ने इसका आंसर 0 था ना, z नॉट 2 था, इसका आंसर 2 भी आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर 2 लगा दिया था। कैलकुलेट करिए। तो हेडमर्ड फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1/r लिमिट सुप्रीमम, है ना, an + 1 अपॉन an मॉड, या फिर आप इसको r में लेना चाहो तो r लिमिट सुप्रीमम ऑफ an अपॉन an + 1 मॉड्यूलस। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, ये बात कभी नहीं बताते हैं लिमिट सुप्रीमम, लेकिन जो मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ये टाइप 1 है, और सेकंड टाइप आप जानते हैं कॉची टाइप में जो होता है 1/n टाइप में। सो 1/r इज, इसलिए मैंने 1/r करवाया था,
क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी 1/r में है ना, मॉड an टू द पावर 1/n। बताओ भाई, ये क्लियर है सबको? बस ये क्लियर नहीं होगा शायद कि लिमिट सुप्रीमम क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं? क्लियर है? बाकी सारी चीजें, लिमिट इंफिनिटी है, ये सारी चीजें तो पता ही है आपको, लेकिन जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो बिना लिमिट सुप्रीमम के हो ही नहीं सकता, असंभव है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। जैसे क्वेश्चन है समेशन -1 टू द पावर n अपॉन n इंटू z -2 टू द पावर n। बताइए व्हाट इज ROC? फटाफट एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी तो फिर अच्छे वाले क्वेश्चन कराऊंगा। इस पे गुड लिख लो, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जल्दी कर लो। एक क्वेश्चन ये है और एक ये है। हाँ क्या आया भाई? -1 माइनस कैसे आएगा भाई? प्लस आएगा, 1 आएगा। नहीं सर, 1 सर इसीलिए 1। तुम्हारे मार्क्स कम है। मतलब तुम लोग तो मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी भी -1 निकाल दोगे। 1 प्लस आयोटा बाई 2 टू द पावर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है? n इज इवन 3 प्लस 4 आयोटा बाई 2 टू द पावर n, n इज ऑड। इसका 1 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। यस सर, 1 आ रहा है। यस सर। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? z माइनस सेंटर लेस देन 1। लेस देन। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको इक्वल टू 1 लिख सकते हैं? चेक कर लीजिए। चेक करना पड़ेगा, 3 रख के चेक कर लो। 3 रखोगे तो क्या आएगा? ये जैसे आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सेंटर के अबाउट ये z इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा यही बनेगा। 3 रख रहे हो तो क्या आ रहा है बताओ ये सीरीज? अरे 3 माइनस 2 टू द पावर n, हे भगवान, समेशन -1 टू द पावर n अपॉन n, ये आ रहा है कि 1 ही आ रहा है सर। 1 वो आ रहा है सर। है? हे भगवान, तुम लोग को क्या हो गया? 1 2 3 क्यों आएगा? मैं क्या पूछ रहा हूँ? एट z इक्वल टू 3, इसका मतलब तुम लोग को ढंग से पावर सीरीज नहीं आया। -1 रेज n अपॉन n आएगा। इसका मतलब है 3 माइनस 2 टू द पावर n, तो जो सीरीज बनेगी ये। अब तुम लोग इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे हो क्या? सर ये एक रियल सीरीज है, रियल सीरीज है ये इसका नेचर निकाला जाता है, इसका थोड़ी ना। यही तो वैल्यू है z इक्वल टू z1 z0 जो कर रहा था मैं। अब 3 रखने पर ये सीरीज बनी और ये सीरीज कन्वर्जेंट है। इसका मतलब आप z माइनस 2 लेस इक्वल 1 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो? ये मतलब होता है इसका। -3 रख के देख लो, ठीक है? -3 रखोगे तो 5 टू द पावर n, तो z इक्वल टू -3। अब चेक कर लेना आप, है ना? बाकी आगे देख लेना, मैंने तरीका बता दिया है। अब इसको, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सारे लोग इसका आंसर 1 निकाल के आ जाते हैं। ठीक है, ये आता भी 1 है, लेकिन ऐसे नहीं आता है जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पे an की वैल्यू क्या देखते हैं? 1। नहीं, गलत है। इस सीरीज को एक्सपेंड करो। क्या मैं जो एक्सपेंशन लिख रहा हूँ वो सही है? मतलब सही है का मतलब आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? याद रखो ये n फैक्टोरियल है। क्या है? n फैक्टोरियल। क्या आप यहाँ पे an को 1 ले सकते हैं? आपको लगता है an 1 है? तो मुझे बताइए, a0 1, a1 1, a2 1, ठीक है, चला आ रहा है। a3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए कि नहीं? a3 का कोफिशिएंट है क्या? कोएफिशिएंट। a4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। n फैक्टोरियल लेंगे सर, n an को फैक्टोरियल है तो फिर n फैक्टोरियल। अरे मैं ये जो पूछ नहीं रहा हूँ नहीं वो n बताओ। लेंगे सर,
हाँ ये तो 0 है सर, तो an को n लेना है, n इक्वल an ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता। वहां पे 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल पुट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। 0 an जो फैक्टोरियल होगा 1 ना, होता है तो z हो जाएगा, an 1 नहीं फिर होगा, z 1 an क्या होगा? फैक्टोरियल z होता है। सुन लीजिए, an जो होगा वो होगा 1 if n is equal to some k factorial and 0 if n is not equal to some k factorial। जब 3 फैक्टोरियल आ रहा है, 4 फैक्टोरियल, तब 1 आ रहा है। लेकिन जब 3 4 इसके बीच में कुछ नंबर ले रहे हो, मतलब कोई फैक्टोरियल वाला फॉर्म नहीं है, तो सारे 0 हो रहे हैं, देखो, है ना? तो ये 1 नहीं होगा। अब जरा बताओ क्या होगा पावर सीरीज। अब an तो ये आ गया स्प्लिट करके, तो आपको क्या लेना है? लिमिट सुप्रीमम। अब लिमिट सुप्रीमम इनमें से देखो, दो लिमिट पॉइंट बने, एक 1 और एक 0। अब लिमिट सुप्रीमम में क्या किया जाता है? जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो r क्या हो गया? 1 अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि n के टर्म्स में थोड़ी आया कांस्टेंट है कि नहीं? लिमिट सर इसका एक्सपेंशन सर, हाँ, एक्सपेंशन हमको क्लियर नहीं हो पाया सर। एक्सपेंशन क्लियर नहीं ये है थ्योरी नहीं सर। तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर n फैक्टोरियल को आप ऐसे एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, देन यू शुड नहीं एक्सपेंस वो तो कर सकते हैं सर, लेकिन A3 A4 जैसे यहाँ पर A1 A2 A3 रखेंगे सर, तो वो हमको इतना ही पकड़ में आ रहा है सर कि 1 कहाँ पर होगा और 0 A3, कहाँ एक पर मिनट रुक होगा। जाइए, A3 किसका कोफिशिएंट होता है an z to the power n? मतलब तीसरा पद का सर, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म होता क्या? z क्यूब होता है ना? यस सर, जेड क्यू होता है। क्या z क्यूब यहाँ पे मौजूद अच्छा है? ठीक है सर, स्क्वायर है, स्क्वायर ठीक है सर, ओके। समझ रहे हैं ना? हाँ, इसीलिए मैंने कहा, देखो धैर्य से अगर एक बार क्वेश्चन को अरे गौर ये से आगे देखिएगा, z आपको प्लस समझ z आएंगे सर, ये आगे z प्लस z आएंगे, z प्लस z प्लस देखो z n इक्वल टू 0, 0 फैक्टोरियल 1, n इक्वल टू 1, तो फिर 1, है ना? स्टार्टेड फ्रॉम 0। यस यस यस। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, बहुत सारे लोग आंसर इक्वल 1 लिख लेते हैं, an को ढंग से नहीं लिख पाते, है ना? अब देखो ये क्वेश्चन करो, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार बताओ, अब an इस तरह से दे दिया गया, अब मुझे जरा निकाल के बताओ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो आप तुरंत कहोगे सर पावर n है, इसका मतलब an टू द पावर 1/n लगेगा। मैंने कहा ठीक, यानी 1 प्लस आयोटा बाई 2 when n is even and 3 plus 4 iota by 2 when n is odd। इतना क्लियर है? यस सर। अब जरा मुझे ये बताओ, इस पे मॉड लगा लो। नीचे का दिख रहा है हाँ सर, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। हाँ, वो थोड़ा लेट होता है। अब अगर मैं इसमें मॉड लगा लूं, तो मॉड an, अभी देखना चमत्कार होगा। मॉड लगाने से ये क्या बना बताओ? तो √2 हो जाएगा सर। और ये क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा सर। 5/2 n इक्वल टू ऑड। तो बताओ इसको सेलेक्ट करोगे कि इसको सेलेक्ट करोगे? जो बड़ा होगा सर। क्यों? सुप्रीमम तो बड़ा ही ना लेते हैं सर। हाँ, तो वही मैंने लिमिट कहा। सुप्रीमम चाहिए सर। हाँ, आप समझ में आया कि यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे अगर फॉर्मूले में लिमिट सुप्रीमम नहीं लिखोगे तो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। लेकिन 1/r ना है सर, एक भी ध्यान देना पड़ेगा, 1/r ना है सर ये। हाँ, तो उसको करेंगे, एक मिनट रुक तो जाइए। करेंगे तो करेंगे। फार्मूले में देखो वो लास्ट में करना है, समझिए, वो लास्ट में है, पहले ये बताना है, ठीक समझ रहे? रिवर्स तो लास्ट में करना है। तो बताइए लिमिट सुप्रीमम ऑफ an टू द पावर 1/n क्या आ जाएगा? 5/2। 5/2 तो अब बताइए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r हो क्या आ जाएगा? जाएगा 2/5। 2/5। अब बताओ क्लियर है? पीछे क्वेश्चन को आराम से यस देखिए, सर। है कि नहीं? लिमिट सुप्रीमम बहुत जरूरी है, चाहे ये क्वेश्चन हो और चाहे ये क्वेश्चन। और तीनों फार्मूला सर बहुत अच्छी है सर। हाँ, बहुत यूजफुल है ना? सर आज पढ़ के अच्छा लगा Thank you। यही उद्देश्य है सर। ना? यस बोलिए। सर बोल रहे हैं जैसे लिमिट सुप्रीमम है सर, उसको बाटा के नीचे कर देंगे तो इन्फीमम से काम नहीं चला सकते हैं सर? अच्छा, ऐसे मतलब आप देखे ये हैं कह सर। रहे हैं, देखिए आप ये कह रहे हैं, मेरे हिसाब से आप ये कहना, देखो यार थोड़ा आगे पीछे हो गया है, हाँ, देख लेना,
स्लाइड थोड़ा आगे पीछे है भाई, देख लेना ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है 1/r इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम an टू द पावर 1/n लिखते हैं, या फिर लिखते हैं लिमिट जी सर सुप्रीमम an अपॉन an प्लस 1, 1 बाई सॉरी मॉड लगा जी दो, सर मॉड ये लिखते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं क्या जी r इक्वल टू हम लिमिट इन्फीमम नहीं लिख सकते? नो सर, इसके नहीं सर, पहले no तो सर, फिर वो नहीं, 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 इंफिमम दूसरा आ गया, 1 बाय नहीं, 2 आ गया। मैं गुड्डू नहीं, जी से ही 1 सवाल by r करूंगा। देखिए मैं गुड्डू जी से ही सवाल करूंगा, गुड्डू जी इस क्वेश्चन में डेमोन्स्ट्रेट करके देखिए आपका आंसर बदल जाए, है कि नहीं? अगर लिमिट इन्फीमम चुना होता तो इसको चुना होता, यस सर सर 1/2 और आंसर उसको क्या बांटा आता? के नीचे किए रहते तो डिफरेंट आ गया रहता सर। हाँ, तो इसलिए ये सही नहीं है ना, ये सही है। सर वो जो क्वेश्चन था ना यानी n फैक्टोरियल टू रेडियस ऑफ पावर, कन्वर्जेंस में सिर्फ सुप्रीमम का ही फॉर्मूला लागू होगा सर। यस, लिमिट सुप्रीमम। अब देखिए ब्यूटी क्या है पता है, ब्यूटी मुझसे पढ़ने में नहीं है, ये सीख लिया है ना। अब एग्जाम पैटर्न से ठीक है, पढ़ रहे हैं अच्छी बात, लेकिन जरा पता करिए, प्रूफ देखिए कि सुप्रीमम कहाँ से आया होगा, लिमिट सुप्रीमम, समझ रहे हैं क्यों लिमिट सर सुप्रीमम की मेरे जरूरत पास पड़ी? एक प्रगति प्रकाशन का बुक है सर, अच्छा अच्छा, प्रगति देख सकते प्रकाशन हैं, जो मेरठ पब्लिकेशन होता है ना सर, समझ रहा हूँ जी जी। जी उसी से हम लोग पढ़े हैं ग्रेजुएशन से लेके पीजी तक सर। हाँ देखते रहिए, नहीं मैं अच्छे बुक्स सजेस्ट करूंगा, लेकिन क्या है अभी थोड़ा तो मेरे बुक्स पास पढ़ने का टाइम कॉन्वे नहीं। है। लेकिन उतना अच्छा नहीं है सर, उसमें सिर्फ एकदम ऐसे नहीं कर नहीं, दिया है आप सर, लगता अगर है कि छाप उप में। पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कॉन्वे एनालिसिस, तो का बुक या तो पोन्नु स्वामी का बुक ले लीजिए आईआईटी मद्रास, या फिर कुमरेसन सर का ले लीजिए अगर पढ़ना है। लेकिन मैं तो पुन्नु सजेस्ट स्वामी का मेरे पास है सर। अभी अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम है, उसके बाद पढ़िए, है ना। सर वो जो क्वेश्चन था ना अपना सीरीज हाँ z टू द पावर n फैक्टोरियल, हाँ हाँ उसका अगर अपन ने डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस लिखने की कोशिश की तो अपन को एक्चुअली जनरल में तो z टू द पावर n चाहिए रहता है, बट हाँ वहाँ पे हाँ है n फैक्टोरियल। हाँ तो हाँ। फिर उसको कैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे? नहीं नहीं, z टू द पावर n, ये किसने बोला कि z टू द पावर n चाहिए होता है? डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाए, इफ दिस इज नोन तो z माइनस यहाँ पे सेंटर और लेस देन r, खत्म। बट समझ जब रहे हैं? कभी भी z टू द पावर 3n वगैरह रहता है तो अपन उसको नहीं क्या कन्वर्ट करते अपने नहीं z नहीं, टू द वो पावर n रेडियस में? ऑफ कन्वर्जेंस के लिए कन्वर्ट करते हैं। z टू द हाँ पावर हाँ ठीक 3n है। अगर आ गया तो इसका मतलब है कि z n इक्वल टू 0 के लिए z, फिर z क्यूब, z टू द पावर 5, तो पहले इसका an लिखो, समझ रहे हो? an बदल के आएगा, an क्या आएगा 1 इफ पावर इज सम 3 टाइम्स, और 0 अदरवाइज, लिमिट सुप्रीमम 1, रेडियस 1। और वैसे भी देखोगे तो 1 टू द पावर 1/3 क्या आता है 1। आगे पढ़ाऊंगा इनको, है ना, अभी मैं कंफ्यूज सर नहीं। यस बोलिए। सर मुझे ये z इक्वल्स टू 3 वाला जो ऊपर में लिखा है ना सर, वो समझ में नहीं आया। इसका मतलब आपको पावर सीरीज ही नहीं है, अगर सही पूछेंगे। नहीं सर, पावर सीरीज समझ में है, पर z इक्वल्स टू 3 पे जो आपने लास्ट में बताया ना वो देखिए क्लियर नहीं हुआ। मैं मान ही नहीं सकता कि पावर सीरीज का कन्वर्जन समझ में आया, क्यों? क्योंकि अगर ये समझ लीजिए, ये इसका मतलब ही है पावर सीरीज का कन्वर्जेंस। आइए एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। एक पावर सीरीज है -1 टू द पावर n, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए, छोड़ दीजिए इसको, तो माइनस, शायद ओके। z बराबर 3 आया कहाँ से है, ये शायद प्रॉब्लम अच्छा हो ऐसा सकता है ये सर। प्रश्न है क्या? अगर ये क्वेश्चन है कि 3 हाँ क्यों सर, है, अच्छा तो 3 ये क्यों लिए हाँ सर ये? देखिए आप लोग देखिए एक बात बताइए, आप सभी टीचर्स हैं, फिर सर सही 2 के क्वेश्चन पोस्ट बाद क्यों नहीं चेक करते? करना है ना, 2 के बाद चेक करना है ना, तो 3 पे चेक किया। देखिए मैं कोशिश z करता हूँ। माइनस 2 बराबर 1 करके दे z-2 लेस देन 1 के लिए तो श्योर हो गए, यस सर, अब बराबर है ना। अच्छा, अब इक्वल करने के लिए उसको 3 पुट अब किया गया कि नहीं, इक्वल अब में मैंने चेक कहा करने था, के लिए। हाँ मैंने कहा इक्वल के लिए जरूर चेक कर लेना। तो अगर इक्वल को थोड़ा सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी को, तो ये जो है, ये 3 आयोटा, होगा। है ना, 3, ये सब, हाँ ये सब इसमें आएंगे, यस सर, ये माइनस, सब समझ में आ गया सर। है ना, ये है। पर मुझे आपका ये बहुत अच्छा तरीका लगता है कि इवन इफ you do not understand even a very small point, you always ask, that is very good point। एक बार सर यस ये सर, डाउट यही सर फंसा वो देता है एकदम, सर। फिर सर यस सर, फिर वो माइंड में वही चलता रहता है, फिर ना और जो समझना है ना वो भी नहीं समझ में तो आता है, ऐसा हो हम जाता है। तो वही सर तो मैं 1-2 मिनट जो है ना z बराबर 3 कैसे आया, 1-2 मिनट तक हमको भी ये थी किया सर, लेकिन हम पूछ नहीं रहे थे, लेकिन हमको समझ में आ गया कि कैसे आया।
देखिए कई बार क्या होता है, टीचर इमीडिएट इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो चाहता है कि आप घर पे मेहनत करें, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर कोई चीज फ्लो में है, मान लीजिए आगे पढ़ाना है, अब इसी यही पे फंसे हुए हैं, तो आगे का 15 मिनट लेक्चर वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये है, यस सर। ठीक है। सर, anything सर बस else? आपने दूसरे भी क्वेश्चन कराए ना, मेरा माइंड उसी में था कि 3 क्यों लिया गया। ऑब्वियसली देखिए हम सब स्टूडेंट हैं, अभी भी हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे, तो दिमाग में वो बैठ जाता है, वहीं पे रुक जाता है ना, लगता है सर कि यार ये इसमें क्या था। इक्वालिटी तभी तभी दे सकेंगे जब सारे बाउंड्री पे कन्वर्ज हो। एक बिल्कुल यानी बिल्कुल लेफ्ट वाले इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पेपर में देखो, मैं एक बात बताऊं, एग्जाम में ना 2 पॉइंट चेक कर लो, 2 पे आ रहा है अगर तो ओके कर दो, कोई दिक्कत। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, है ना। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।